we have a share PDF also. I think this is the yes. Good afternoon to all of you. Today we have discussed very important topic, the LR parser. ठीक है, एक बार जस्ट मैं 1 मिनट रिकैप करता हूँ और फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर. That is a LR parser, that is a bottom up parser. The LR parser categorized into 4 parts: LR0, SLR1, LLR1 and CLR1. Okay, यहाँ तक आपके एग्जाम में आएगा. ठीक, the sessional first. Okay, so that is a LR0, SLR1. These LR0 and SLR1 solve with the help of a LR0 item. First of all, try to understand what is the meaning of this LR. L, that is the purpose of a scanning left to right. R is the derivative term, the reverse of a right mode derivation. Okay, that is an indication of this one. That is a bottom up parser. So here we have a start from the children leaf node to go up to the root node. Okay, so how it is exactly work, we have a understand here the bottom up parser. Okay, so what is a bottom up parser? Here is the stack and LR parser and LR parsing table. The LR parser take the input from these 3 steps. कहाँ से लेता है? Stack से input लेता है, input buffer से लेता है, and LR parsing table से लेता है. And what is after taking the input of all these things is produce the output. Because it is a parser, the main thing is that each parser, what is the main fundamental role of a parser? Produce the parse tree. Okay, any parser, either it is a top down or bottom up, तो same काम ये भी करता है, parse tree करता है. Input buffer stacks लेने पर the major role of a LR parsing table क्या करता है? Decision वाले part को यही बताता है. जैसे for example LL1 में जो LL1 parsing table था, वो बताता था कि कौन से step move करने हैं without the backtracking and without the recursion. Okay, but here the LR parsing table using some different technique. ठीक है, ये कैसे सॉल्व करता है? इट इज ए सॉल्व विद द हेल्प ऑफ LR0 आइटम्स. सो इन ए नेक्स्ट स्टेप वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए LR0 आइटम्स और कैसे वो काम करता है. ओके, तो ईच पार्सिंग टेक्निक, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर देयर आर 4 पार्सिंग LR पार्सिंग टेक्निक: LR0, SLR1, LLR1 और CLR1. सब में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? उसका पार्सिंग टेबल डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा. ठीक, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. पार्सिंग टेबल डिफरेंट होगा, बाकी इनपुट बफर भी होगा, स्टैक्स भी होंगे, पार्सिंग टेबल डिफरेंट होंगे. क्या डिफरेंट होगा? वी हैव लर्न इन अपकमिंग लेक्चर. ओके, so try to, we have already studied this one. This is a step to solve the LR0 sums. The first of all, what is a step? This one, augment the given grammar. Whatever grammar is given, convert it into augment grammar. How we can convert it to augment grammar? Whatever starting symbol is given, हम उससे कैसे indicate करें? Our E derived to something, so we have the E dash derived to E, S derived to, तो S dash derived to A. On this way we have converted the given grammar into augment grammar. ठीक है, एक नकली ग्रामर ऊपर ऐड करते हैं जिसका नाम क्या है? Why I am calling this a नकली ग्रामर और false grammar? Because वो एक्चुअल ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, तो स्टार्टिंग सिंबल मैं किसी और से नोटेट करके दिखाऊंगा, जस्ट एज ए स्टार्टिंग सिंबल नहीं दिखाऊंगा. उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ग्रामर. व्हाट इज सेकंड स्टेप? ड्रॉ द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 और DFT. अभी DFT आप नहीं बोलेंगे क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम की बात हो रही है यहाँ पे. But you have already studied data flow diagram in some different segment. तो अभी के लिए सिर्फ इतना आप लिखेंगे, draw canonical collection of LR0 item. Okay, तो कैसे मैं किसी भी canonical collection LR0 item लिखता हूँ? After that, what is the third step? The number of a production. What is the number of a production? What is the grammar is given? Actual grammar जो दिया है और वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है, सबकी हम नंबरिंग कर लेंगे बेस्ड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके, जो जैसे आ रहा है उस ऑर्डरिंग के हिसाब से मैं प्रोडक्शन कर दूंगा. After that, what is the fourth step? Create a parsing table. What is the fifth step? Stack implementation and draw parse tree. So in a previously we have covered these 2 steps. Okay, augment the grammar and draw the canonical collection of the grammar. You just recap and after that we move further. Okay, so here we have take the one example. Construct the LR0 item and produce the parse tree for the CCDD $. Okay, तो ये एक इनपुट स्ट्रिंग दिया है. समटाइम द डॉलर इज नॉट मेंशन हियर. अगर डॉलर मेंशन नहीं है तो प्लीज आप डॉलर मेंशन कर लीजिए, बिकॉज वट एवर द इनपुट स्ट्रिंग एंड और जो स्टैक है दोनों में बाय डिफॉल्ट हम डॉलर कंसीडर करते हैं. व्हाट इज ये इंडिकेशन ऑफ दिस डॉलर कि जो भी इनपुट बफर में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, इसके पहले कुछ वो खाली वो एम्प्टी स्टेज में था.
ओके जैसे कोई कंटेनर है, फॉर एग्जांपल एनी कंटेनर इज गिवन, तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि कंटेनर अभी खाली है, ठीक है। ये इंश्योरिटी देने के लिए कि स्टैक भी खाली था और इनपुट बफर भी खाली था। ओके वी हैव यूज्ड द डॉलर कि प्रीवियस कोई भी डेटा, कोई भी गार्बेज अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई फॉर द इंश्योरिटी वी हैव यूज्ड द नोटेशन ऑफ ए डॉलर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव यूज्ड द डॉलर। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? यहां तक समझ में आया आपको? यस प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? आर यू हियर? I am audible? Yes, please. Are you with me? Anyone? I think a lot of the people available, but unable to talk. Everyone. Yes. Okay. Srijan, okay. शशांक शुक्ला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बोल दो। Have you any issue to audio and all those things? ठीक है, चलो स्टेप 1 में क्या है, वट एवर ग्रामर, ये ग्रामर गिवन है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कंस्ट्रक्शन आता है LR0 आइटम एंड प्रोड्यूस द पार्स ट्री। तो LR0 आइटम किसी भी ग्रामर का कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके हियर ग्रामर इज गिवन E derived to BB and B derived to CB and D। ओके तो आर्गुमेंट द गिवन ग्रामर क्या है, E dash derived to E। ये देखो नकली ग्रामर हमने लिख लिया, डोंट यूज हियर द नकली ग्रामर, that means it is just only for the your understanding purpose here we have here mentioned। ओके तो ये जो स्टार्टिंग सिंबल है ये किसी और नोटेशन से इंडिकेट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ग्रामर है। E दिया है तो E, S दिया है तो S डैश। ओके तो हियर E, तो E डैश डिराइव टू E एंड रिमेनिंग पार्ट इज सेम एज ए कॉपी पेस्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ग्रामर। एंड हियर वी हैव a try to understand how the canonical collection of a LR0 item। there are two major concept associated here the LR0 item। एक का नाम है क्या, क्लोजर, सेकेंड का नाम है क्या, गो टू। ठीक है, क्लोजर का क्या मतलब है, वी हैव इन ए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इफ A belong to S, B belong to S and we have a perform some operation, for example A plus B, and both whatever production we have find out it's belong to the same set S, that is a closure। okay इसका क्या मतलब है, किसी सेट से जो ABU की वैल्यू बिलोंग कर रही थी और आफ्टर द ऑपरेशन भी वो उसी सेट से बिलोंग कर रही है, that is a closure, that is a definition, that is a mathematics। okay so here the same phenomena we have used here the closure। कैसे करते हैं ये, whatever grammar we have chooses उसके स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, और डॉट के सॉरी डॉट के बाद की जो पोजीशन है, डॉट के बाद अगर वो कोई वेरिएबल है तो जो भी प्रोडक्ट है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या चूज किया, E डैश डिराइव टू E। ओके E डैश डिराइव टू E, E के बाद क्या है, डॉट है, E के बाद डॉट है तो E कोई प्रोडक्शन दे रहा है, यस E गिव द प्रोडक्शन, E प्रोवाइड्स द BB। तो E के बाद क्या मिला, डॉट के बाद BB मिल गया। अब डॉट के बाद क्या कोई वेरिएबल है, यस B इज ए वेरिएबल, तो यहाँ पे फिर से मैंने प्रोडक्शन क्या कर दिया, B क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CB एंड D। सो हियर वी हैव डॉट लगा दिया CB और D में। अब मैं फिर से चेक करूंगा क्या डॉट के बाद कोई प्रोडक्शन है, तो डॉट के बाद स्मॉल c है, डॉट के बाद स्मॉल d है। ओके तो वी हैव नॉट फर्दर एक्सटेंड ऑल दिस थिंग्स, तो यहाँ पे मैं फर्दर एक्सटेंड नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? Till now it is clear. Are you with me? Please respond. Are you feeling sleepy? Be excited about the learning, okay? Yes. Parth Bhati, Piyush Verma, Pragati. Are you here? Chalo, we have moved for the next one, okay? So now we have a here, okay? So here is the we have a find out what is your objective। ये क्लोजर मैंने बना लिया, इस क्लोजर के बाद जो डॉट की पोजीशन है, ध्यान से समझना, जो डॉट की पोजीशन स्टार्टिंग में लगी है, हम क्या चाह रहे हैं कि वो मूव होके लास्ट में चली जाए। ओके कैसे जाएगा, तो यहाँ पे मुझे ई को रिड्यूस करना है, तो मैंने क्या ले लिया, ई ले लिया। ओके ई ले लिया, व्हेन वी गिव द इनपुट ऑफ ई, तो ये जो डॉट की पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग। ओके या पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, but after that there is no production is available, that's why it is a reduced। ध्यान से समझो, जब एक बार जाता है तो शिफ्टिंग हो गया, लास्ट में पहुंच गया तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस। इज इट क्लियर? जो डॉट बोलते थे पहले हम क्या करते हैं, डॉट इनिशियल में लगाए थे, ठीक है, क्लोजर निकालने के लिए,
उसके बाद शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन करके उसको सॉल्व करते हैं। बट ये समझने की जरूरत है कब शिफ्ट बोलते हैं कब रिड्यूस बोलते हैं। जब डॉट के राइट साइड में पहुंच जाए कोई प्रोडक्शन अवेलेबल ना हो तो हम बोलते हैं ये रिड्यूस हो गया। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ गो टू। Why it is known as a go to? Because here we give the I0 स्टेज से हम क्या कर रहे हैं I1 स्टेप पे चले जा रहे हैं, इट इज अ गो टू स्टेप। बट अगर सेम ब्रैकेट में हम एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं क्लोजर, बिकॉज इट इज बिलोंग टू द सेम सेट। ओके, एज पर डेफिनेशन वट एवर आई हैव टोल्ड। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। आर यू एक्साइटेड फॉर द लर्निंग और नॉट? यस प्लीज, आर यू विथ मी? Parth, Shashank, what about the remaining student? Only 3-4 student is remaining, responding each time. Shivam is responding, Srijan responding, Shashank Shukla, Parth. Where is the Vanshika, Shivendra and remaining student? Huh? Yes, आवाज कट रही है क्या? Yes, Shivam. Is it clear? Clear है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आवाज कट रही है आपकी, कोई बात नहीं। एंड प्रेक्षा? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो वेरी गुड। तो बताओ ना उसको कि क्लियर हो रहा है सर, समझ में आ रहा है। प्रतीक, इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, बोलो। यस सर, क्लियर। हाँ वेरी गुड, बोलते रहो, जैसे एक्टिव रहोगे ना, नहीं तो ऐसे खाना स्लिपी फील करने लगोगे। चलो यहाँ से ई इंसर्ट किया तो हम कहाँ पे गए? ई डिड्यूस हो। आफ्टर दैट हियर वी हैव टेक द बी। यहाँ पे क्या है, बी की शिफ्टिंग हो रही है, जस्ट मूव द वन स्टेप। बी यहाँ पे आ गया दिस स्टेप। आफ्टर डॉट, अब प्लीज अनम्यूट, ओके। एंड आफ्टर द बी डॉट के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है। इज इट क्लियर? So we have variable, so whatever production given by the B, this is the given production. So B derived to CB and D. We have a unmute all of you. Sir, clear hai? Okay. I have, yes, very good. I mute all of you and listen very carefully. Okay. After that, we have already explained this one, I think. Now, have you any doubt regarding this diagram? I have already drawn 2 times of this particular diagram. Is it clear by everyone? यस सर। We move further. आगे प्रोसीड करें, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, मैंने रिड्यूस किया है और जो भी कॉमन स्टेप मिल रहा था वहां पे एरो से कनेक्ट किया। यस यस, गुड, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप? ये डायग्राम बनाने के बाद हमने सारे स्टेट को ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द स्टेट नंबर 1, इज द स्टेट, वी हैव ए नंबरिंग I0 स्टेज, दिस वन I1, I2, I3, I4, I5, I6. We move further to how to solve the stack implementation. Okay, today we have covered this one. देखो अब यहाँ पे what is the third step? The number of a production. What is the number of a production? Whatever grammar is given, what is the actual grammar is given. Okay, so this is our argument grammar. It is a not exist in a actually. Okay, that's why we have a not give any number from here. Is it clear why I am not giving numbering here? Okay, and after that E derived to BB, B derived to C. So this is the production number 1, 2, 3. Okay, so it is a very important कि how we can construct the parsing table. ठीक है, यहाँ पे बहुत समझने की जरूरत है कि how we can construct the parsing table. Till now we have covered the step number 3. जो parsing table को construct करते समय here we have mentioned the state. What is our state? This is our state. जो भी मैंने canonical collection में बनाया था I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, whatever state here we have defined, वो सारे state हो गए, ठीक। और उसके बाद 2 टर्म्स और यहाँ पे एसोसिएट होते हैं, द नेम ऑफ एक्शन एंड गो टू। ओके, so there is a I0, I1, I2, I0 to I6 we have already find out, तो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं। ओके, उसके बाद एक्शन में हम लिखते हैं कि कितने भी टर्मिनल है, कौन कौन से टर्मिनल हैं ऊपर, जो वट एवर ग्रामर इज गिवन, दैट इज ए C, D and $। ओके, एंड इन ए गो टू C, D and $, देखो यहाँ पे C, D, there are 2 terminal is given, C and D, and we have already know dollar तो by default होता ही है। क्यों होता है अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, क्लियर है सबको? डॉलर क्या कहता है, प्रीवियस स्टेट जो है एम्प्टी स्टेट है, वो मतलब वट एवर वी हैव इंसर्ट इन एनी कंटेनर, वो प्रीवियस का कोई डेटा, कोई गॉर्बेज अवेलेबल नहीं है, वो एम्प्टी स्टेज है, ये शो करने के लिए हम डॉलर का यूज करते हैं। ठीक है,
So there, here we have used the in a three terminal C, D, and dollar. Okay, and in a go-to we have used the two variable. Why we have using the only two variable? Because in a grammar available only two variable. हमारे पास क्या है, E and B है. Okay, कोई बोलेगा सर E dash ले लो. E dash नहीं है actual grammar का part. Okay, it is just a part of a argument grammar. That's why we have not considered the E dash here. Is it clear by everyone? Now it is very interesting how we can fill out this particular table. It's very important. देखो अब हमें क्या कर रहे हैं, I0 से C इनपुट देंगे तो कहाँ जाएंगे, और देखते हैं कहाँ पे जाएंगे. तो whenever we have fill this table, we have required the LR0 canonical collection. क्या करना है मुझे, I0 से C स्मॉल c इनपुट देने पे क्या हो रहा है, देखूंगा मैं क्या हो रहा है, और देखते हैं. I0, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीच हियर I0. इज इट क्लियर? ये हमारा I0 स्टेज है. I0 से क्या इंसर्ट करने के लिए बोला है, एक्शन में क्या था, स्मॉल c. दिस द आवर स्मॉल c. ओके, व्हेन वी हैव गिव द I0 स्मॉल c, व्हाट काइंड ऑफ ए ऑपरेशन हियर इज ए परफॉर्म. हम कहाँ पे जा रहे हैं, I3 स्टेज पे जा रहे हैं. इज इट क्लियर? I3 स्टेज पे जा रहे हैं और काम क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे देखो C कहाँ पे था, C स्मॉल c से पहले क्या था, डॉट. Whenever we have give the input of this small c, then we have a shift this position. C से जो यहाँ था यहाँ पहले आ गया. अगर ये सबसे लास्ट में पहुंच जाता तो इसको क्या बोलते, रिड्यूस. इज इट अंडरस्टैंडेबल? सबको समझ में आ रही है? तो सिर्फ एक शिफ्टिंग हो रही है. तो स्टेज 3 पे शिफ्टिंग हो रही है. हम कहाँ पे जा रहे हैं, whenever I0 स्टेज पे है, C इनपुट दे रहे हैं, तो हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, I3 स्टेज. ये I3 स्टेज पे पहुंच रहा है और इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. और जब I सबसे लास्ट में होता है उसको बोलते हैं रिड्यूस. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे E की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, रिड्यूस हो रही है. E पे यहाँ पे है तो क्या हुआ, सबसे लास्ट में हो गया ना, इट इज ए रिड्यूस्ड. इज इट क्लियर? यस. ठीक है. और अगर उसके बाद होता है, अभी हम और क्लियर करेंगे आपको शिफ्टिंग रिड्यूस. तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है क्योंकि I की जो पोजीशन, ये डॉट की पोजीशन है वो लास्ट में नहीं पहुंची. तो दैट्स वाई हियर वी हैव मेंशन द S3. S3 का क्या मतलब है, S3 का क्या मतलब है, वी रीच द स्टेज 3. और S क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे शिफ्टिंग हुई है. Whenever, ध्यान से समझो इसको, I0 हमारा स्टेट था. Whenever we have give the input of this small c, उसके बाद हो क्या रहा है, हम स्टेज 3 पे पहुंच गए. और सर उसकी वहां पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, वहां पे ऑपरेशन शिफ्टिंग का हो रहा है सर. जस्ट वन वेरिएबल शिफ्ट हो रहा है. फिर क्या शिफ्ट हो रहा है, जो डॉट की पोजीशन थी. ओके, दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन द S3. इज इट क्लियर? सबको यहाँ तक समझ में आया? यस, या हैव यू एनी डाउट? चलो अब मैं देखता हूँ I0 पे D की पोजीशन सर क्या हो रही है. I0 पे D की पोजीशन, I0 ऊपर आओ. I0 से सर मैंने D दे दिया, I0 से D दिया, फिर क्या हो गया, हियर इज द अगेन शिफ्टिंग. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे D पहले का, D के पहले की पोजीशन क्या थी, D डॉट यहाँ लगा हुआ था. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस दोनों हो रहा है. यहाँ पे भी शिफ्ट रिड्यूस दोनों हो रहा है और यहाँ पे भी. देखो ध्यान से, E के पहले क्या था, डॉट. E के पहले डॉट है कि नहीं, पहले बताओ. E जब इंसर्ट हो गया तो क्या हो गया, डॉट लास्ट में पहुंच गया. एक शिफ्टिंग हुई है और इसके बाद कोई प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं, इसलिए रिड्यूस भी हुआ है. सेम फिनोमेना अप्लाई फ्रॉम हियर. यहाँ D का क्या है, D के साथ शिफ्टिंग हुई है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई हियर द D इनपुट देंगे तो हमने क्या किया कि हम फोर्थ स्टेज पे पहुंचते हैं और ऑपरेशन क्या हो रहा है, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, शिफ्टिंग का. ओके, डॉलर तो मैंने इनपुट ही नहीं दिया था किसी पे, कि दिया था पहले बताओ. चेक योर कैनोनिकल डायग्राम. LR0 आइटम देखिए आप अपना, डॉलर इनपुट दिए थे. हियर वी हैव गेट, देखो C और D. शिफ्ट कैसे हुआ, ये तो लास्ट में पहुंच गया तो रिड्यूस होना चाहिए ना. पहले ध्यान से समझो, शिफ्ट किसको कह रहा है, रिड्यूस किसको कह रहा है. शिफ्ट का मतलब क्या है, जब भी मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, जैसे डॉट यहाँ पे है, ठीक, और वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, एक स्टेप शिफ्ट कर रहा है. यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस दोनों हो जा रहा है एक इनपुट देने पे. व्हाई आई एम सेइंग दैट कि शिफ्ट रिड्यूस दोनों हो रहा है. पहले यहाँ से देखिए, D की पोजीशन से पहले डॉट था. इज इट क्लियर? जब मैंने D इंसर्ट किया, ठीक है, मैंने D इंसर्ट किया तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन एक चेंज हो जाएगी, चेंज होगी. ठीक है,
तो शिफ्टिंग ऑपरेशन तो परफॉर्म ही हुआ, इसके आगे कुछ और होता तो होता ही, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक एडवांटेज और मिल रहा है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे का कोई भी आइटम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देयर ये ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे शिफ्टिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, पूरा पूरा प्रोडक्शन रिड्यूस भी हो रहा है। इज इट क्लियर? और सर रिड्यूस किस में करें, मतलब अभी रिड्यूस रहने दो, अभी रिड्यूस बता रहा है। अभी शिफ्टिंग समझो, पहले एक एक स्टेप समझो। शिफ्टिंग क्लियर समझ में आएगा सबको कि नहीं? अभी रिड्यूस में अभी शिफ्टिंग समझो पहले, रिड्यूस में बताता हूँ। गिव द 2-3 मिनट्स। शिफ्टिंग ये समझो, डॉट यहाँ पे है, कोई भी वेरिएबल आता है, अगर ये सेम वेरिएबल वट एवर इनपुट और ये हमारा स्टैक है, दोनों सेम मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, लोकेशन शिफ्ट कर देते थे कि नहीं? ध्यान में है स्टैक में? हैव यू रिमेंबर? इनपुट बफर में जो वैल्यू मिलती थी और जो स्टैक में मिलती थी, तो जो सेम मिलता था, यहाँ पे डी मिल गया, यहाँ पे डी मिल गया, तो क्या करते थे? शिफ्टिंग करते थे ना? हैव यू रिमेंबर? नहीं याद है कि नहीं आपको? यस प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ गुड। तो अभी ये समझो कि यहाँ पे ये क्या हो, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होके कहाँ पे गया? I0 से जो स्टेप था वो I4 पे आ गया। इज इट क्लियर? अभी रिड्यूस का बताता हूँ मैं। पहले एक साथ एक ही चीजें समझिए, दोनों साथ में मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, शिफ्टिंग समझ में आई यहाँ पे एवरीबडी? सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव मेंशन दैट कि D से S4 पे ये चीजें इंसर्ट हो गई। दैट्स व्हाई हमने S4, मैं I0 से फोर्थ स्टेज पे जा रहा हूँ और वो क्या ऑपरेशन रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ओके चलो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सर डॉलर के साथ देख लीजिए। तो डॉलर पे कोई इनपुट से कहीं गया है क्या? I0 पे डॉलर कोई इनपुट है? यहाँ पे देखो, कैपिटल E है, B है, C है, D है, कहीं डॉलर दिख रहा है कि कहीं डॉलर इनपुट है? एनीवन? हैव यू फाइंड आउट डॉलर एनीवेयर? नो सर। नहीं है, तो हम उसको वहां पे ब्लैंक रखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, दैट्स व्हाई हियर इज द ब्लैंक। अब मैं देखूंगा I1 से कहाँ पे जा रहा है, CDE डॉलर के लिए। I1 ये स्टेज है, ये तो फाइनल पे पहुंच गया है, ध्यान से समझो। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पे पहुंच गया। व्हाई इट इज कॉल्ड द फाइनल और एक्सेप्टेड? इसके एक तो ये रिड्यूसिंग पोजीशन पे, मतलब मैंने आपको अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि लास्ट में मुझे पहुंचने का ऑब्जेक्टिव था। अभी ये समझो, रिड्यूसिंग बाद में बताते हैं, लास्ट में पहुंचने का ऑब्जेक्टिव था, कोई इनपुट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है और ये ग्रामर में एग्जिस्ट भी नहीं है। ठीक, तो डॉलर क्या है, ये एक एम्प्टी या एक्सेप्टेबल कंडीशन को ये शो करता है। जो भी मेरा आर्गुमेंट ग्रामर था वो लास्ट में यहाँ पे पहुंचा, तो ये हमारा एक्सेप्टेबल कंडीशन को, और यहाँ पे देखो नहीं सी से मूव कर रहा है नहीं डी से कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाए, इसका क्या मतलब है, लास्ट में कौन सा सिंबल बचा होगा मेरे पास जब पूरा पूरा रिड्यूस हो गया? जब मैं देखो, जब दोनों में स्टैक में हम पार्सिंग कर रहे थे, दोनों में डॉलर डॉलर आया था, तो क्या इंडिकेट किया था, दैट इज एक्सेप्टेबल। वहां पे मैंने एक चीज बोला था कि जब दोनों में डॉलर डॉलर, इसका मतलब क्या है, वी हैव एबल टू ड्रॉ द पास ट्री। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल की कंडीशन मिल रही है मुझे, इनपुट से कहीं मूव नहीं कर रहा, पूरा पूरा रिड्यूस हो जा रहा है। दैट्स व्हाई हियर वी हैव मेंशन द, नहीं सी पे कहीं मूवमेंट है नहीं डी पे मूवमेंट है, तो हम डॉलर के केस में कर रहे हैं, इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, फिर मैं I2 पे देखा, I2 पे C देखो कहाँ जा रहा है, I2 कहाँ पे है, दिस इज द I2 पे मैंने C दिया, क्या पे S3 पे गया, एंड I2 पे फिर मैंने D इंसर्ट किया तो कहाँ पे है, S4 पे गया। देखो यही दोनों वैल्यू दिखी होगी यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, I3 पे भी सेम है। अब चलो इसको समझते हैं कि ये सब रिड्यूस किस केस में लिखते हैं और वाई वी हैव राइट द रिड्यूस। ओके, रिड्यूस का समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं देखता हूँ कि I4 से C पे, ऊपर आओ, I4 से, ये है I4 से C पे कहीं पे जा रहा है क्या? नहीं, I4 से C पे कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, और I4 से D पे कहीं जा रहा है? सर I4 से D पे भी नहीं जा रहा, I4 से डॉलर पे कहीं नहीं जा रहा है। ये कहीं पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से समझिए, इस स्टेट में जितने लोग इनफ्लो आ रहा है बट आउटफ्लो कहीं नहीं हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो D से आ रहा है, ठीक है, मतलब I0 स्टेज से आ रहा है, I4 से आ रहा है और I2 से आ रहा है, बट कहीं से आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग हो रही है क्या? प्लीज बताओ मुझे, इज इट एनी शिफ्टिंग हियर? देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है।
रिड्यूस होने का क्या मतलब है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो डॉट की पोजीशन है ये लास्ट में पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन लास्ट में पहुंच जाए तो कौन सा ग्रामर रिड्यूस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा कि रिड्यूस किए किसको। तो ये क्या हो रहा है, बी डिराइव टू डी। अब मैं जो एक्चुअल ग्रामर में चलूंगा जिसकी मैंने नंबरिंग की है, ऊपर आओ, यहाँ पे मैंने नंबरिंग की थी, दिखा रहा हूं मैं आपको। यस यस हियर, यहाँ पे नंबरिंग है। कैपिटल बी से डी रिड्यूस कौन कर रहा है पहले बताओ, थर्ड स्टेप कर रहा है। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? देखो इसमें मैं नंबरिंग क्यों नहीं कहता, इसको मैंने एक्सेप्टेबल स्टेज पे मान लिया था, ओके, क्योंकि हमारा ग्रामर का पार्ट नहीं है। अगर सर ये डॉलर को इंडिकेट करने के लिए है तो ये एक्सेप्टेबल कंडीशन हो गई। उसके बाद जितने भी प्रोडक्शन है सबका मैंने क्या दिया, प्रोडक्शन नंबर दिया 1 2 3। अभी हमने क्या देखा, जो डॉट की पोजीशन यहाँ पे थी, एक स्टेज मुझे ऐसा मिला यहाँ डॉट की पोजीशन लास्ट में है, तो लास्ट में पहुंचना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। बट हम ग्रामर से ये देखेंगे कि हमारे ग्रामर का पार्ट है कि नहीं जो उसको रिड्यूस कर रहा है। अगर लास्ट में तो इसका मतलब टोटली वो रिड्यूस कर रहा है। तो कौन सा ग्रामर रिड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन नंबर 3। इज इट क्लियर? प्रोडक्शन नंबर 3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टोटली सक्सेसफुली। कैसे पता मुझे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो डॉट के बाद अब कोई भी राइट साइड में कुछ बचा ही नहीं, इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी, ध्यान से समझो इसको, जब भी LR0 पार्सिंग टेबल में कंसल्ट करता हूँ और कोई भी प्रोडक्शन रिड्यूस करता है तो मैं उसका प्रोडक्शन नंबर देखता हूँ कि सर यहाँ पे तो R3 की कोई ये थी ये थर्ड नंबर का प्रोडक्शन है और ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि डॉट की पोजीशन लास्ट में है, ठीक है। तो जितने भी इनपुट हैं CDEF, जितने भी इनपुट हैं सब में मैं क्या लिखूंगा, R3 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 R3। इज इट क्लियर? चलो अभी आगे और सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। दैट्स व्हाई हियर वी हैव मेंशन द R3 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 सब में लिख दिया, ये रिड्यूस हो गया। जितने भी इनपुट होंगे, जितने भी एक्शन में जितने इनपुट होंगे, ठीक है, सब में ब्लाइंडली लिखेंगे, ओके। देयर इज ए नो ऑब्जर्वेशन हियर। शिफ्ट में देखिए मैं ऑब्जर्व कर रहा था, बट रिड्यूस में मैं देख रहा हूँ कि ग्रामर हमारा रिड्यूस हो, तो जितने भी CDE जितने भी इनपुट दिए होंगे टर्मिनल के सब में मेंशन कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ I5 से C पे कहाँ पे जाते हैं। मतलब डॉट अगर लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा उसके बाद अगर कोई किसी पे भी हमें देखना होगा प्रोडक्ट, देखो सब में एक बार आप सारे CD और इसमें देखना है तो मतलब सब में सेम लिखेंगे क्योंकि वो लास्ट में पहुंच गया है। हाँ, अगर वो लास्ट में पहुंच गया तो जितने, देखो लास्ट में पहुंच गया है तो हमें क्या चेक करना है, हमें जो एक्चुअल ग्रामर है, ठीक है, एक्चुअल ग्रामर में उसकी नंबरिंग देखनी है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कहाँ पे है वो। तो जो भी उसका नंबर, जैसे अगर कोई मुझे पूछे सर R3 आपने कैसे लिखा, तो यहाँ पे मिला मुझे, ध्यान से समझो यहाँ पे। तो हमने इसका प्रोडक्शन नंबर चेक किया, किसका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कैसे मैं प्रोडक्शन नंबर दूंगा, बेस्ड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो ग्रामर है जो पहला है उसका पहलो, जैसे दूसरा है दूसरा। तो यहाँ पे थर्ड मुझे मिल गया और मैं देख रहा हूँ डॉट की पोजीशन लास्ट में है, तो जितने भी इनपुट हैं जैसे CD डॉलर हो सकता है 2-4 और होते हैं, तो सब में मैं क्या लिखूंगा, R3 R3 R3। इज इट क्लियर? व्हाई वी हैव मेंशन द R3? बिकॉज द प्रोडक्शन नंबर 3 इज रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात की नहीं, ये पहले बताओ। दैट्स व्हाई हियर मेंशन द R3 R3 R3। अब चलो देखता हूं मैं I5 पे R1, फिर से सेम स्टेप है, ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ आया फिर से समझिए। I5 से C, I5 इज द हियर, ये देख रहे हो, I5 से पूछ रहे हैं C, तो यहाँ पे इनपुट तो आ रहा है। देखो रिड्यूसिंग स्टेप का एक और क्वालिटी होगी, ध्यान से समझिए, इसके आगे कोई फ्लो नहीं होगा। मैं आपको यही ऑब्जर्व करा रहा था, यहाँ पे देखो इनफ्लो हो रहा है, यहाँ से D से I0 स्टेज से आ रहा है, I3 से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट देयर इज नो फर्दर आउटफ्लो, इसके आगे कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे देखो I5 में इनपुट B से तो आ रहा है बट कोई आउटपुट भी निकल रहा है क्या इनसे, सिर्फ इनफ्लो है, देयर इज नो आउटफ्लो। देखो दो चीज है, सिर्फ इनफ्लो होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो डॉट की पोजीशन है वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, डॉट की पोजीशन लास्ट में, दैट मीन इट इज ए रिड्यूस्ड। अब मैं ग्रामर में चेक करूंगा, एक्चुअल ग्रामर में, कि कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब मैं देखता हूँ I5 में कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है। यस, दिस वन। तो कौन सा प्रोडक्शन है ये, फर्स्ट है कि सेकंड है? बी।
बीबी कौन सा प्रोडक्शन है? फर्स्ट है ना, हियर इज मेंशन, ये देखो प्रोडक्शन फर्स्ट बीबी रिड्यूस हो रहा है, इट इज ए रिड्यूस, तो सब में क्या लिखेंगे? R1 इज इट क्लियर? तो हमने सब में क्या लिखा? R1 R2। सेम सिमिलर यहाँ पे क्या हो रहा है? R2 रिड्यूस हो रहा है। I6 पे C देखो, दिस इज द I6 वनली इनफ्लो, देयर इज नो आउटफ्लो, और ये डॉट की पोजीशन है लास्ट में पहुंच गई है। डॉट की पोजीशन लास्ट में पहुंच गई, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डॉट की पोजीशन लास्ट में पहुंच गई है, तो प्रोडक्शन नंबर 2 इज रिड्यूस, तो जितने भी वहां पे थे सब में हम 2 लिख दिए। इज इट क्लियर? अब चलो गो टू वाला समझते हैं यहाँ पे। अब I0 से E पे क्या हो गया था? I0 से E, दिस इज द I0 से E पे क्या हो गया? तो हम कहाँ पे पहुंच गए? स्टेज नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन नहीं, जस्ट स्टेज का नंबर लिखते हैं, तो दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन द 1। इज इट क्लियर? अब मैं देखता हूँ I0 से B पे इनपुट दिए थे तो कहाँ पहुंचे थे? देखो ये हमारा I0 है, I0 से B इनपुट दिया, वी हैव रीच द I2। ओके, तो जस्ट यहाँ पे स्टेट का नंबर लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? ठीक है, B के नीचे और I0 के सामने 2। अब मैं फिर से देखता हूँ कि I1 पे E क्या आउटपुट दे रहा है। आओ ऊपर देखो, I1 से तो कहीं प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा है, नहीं E निकल रहा है, नहीं B निकल रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे ब्लैंक है, देयर इज नो मेंशन E एंड B, क्योंकि E डजंट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्शन। ओके, फिर मैं देखता हूँ I2 पे E क्या दे रहा है। क्या देख रहा हूँ? I2 पे E, फिर I2 पे B देखूंगा। I2 पे यहाँ पे आ गए हम, I2 पे क्या है? E तो कहीं प्रोडक्शन ही नहीं दे रहा है, I2 पे B दे रहा है 5, दैट्स व्हाई हियर वी हैव मेंशन द 5। फिर मुझे क्या मिल गया? I3 क्या प्रोडक्शन दे रहा है? B पे 6 दे रहा है, देख लेते हैं। I3 B प्रोडक्शन पे क्या दे रहा है? I6। E पे क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, तो दैट्स व्हाई E ब्लैंक रखेंगे और बाकी वो रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है तो कोई और प्रोडक्शन देने की बात ही नहीं, क्योंकि रिड्यूस होने में क्या हमने सीखा है? देयर इज नो आउटफ्लो। गो टू का क्या मतलब है? एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहा है, समझ में आ रहा है? एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहा है, बट यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है, तो एक चीजें मैंने अभी आपको क्या ऑब्जर्व करी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है। इज इट क्लियर? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड। सर दूसरी क्लास शुरू हो गई सर। चलो ठीक है।